Hi friends, welcome back. भाई USA media shocked after seeing India GDP growth. इंडिया इज नेक्स्ट सुपर पावर। वो तो है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के समय इंडिया की जीडीपी ग्रोथ देखकर अमेरिकन मीडिया काफी शॉक्ड है। जहां पूरी दुनिया में रिसेशन की लहर चल रही है, चाहे यूके, कनाडा, जापान हो, ये सभी देश रिसेशन में जा चुके हैं। वहीं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 8.4% निकल कर आई। इसे देखकर वर्ल्ड मीडिया से लेकर अमेरिकन मीडिया चिढ़ गई। ये वेस्टर्न मीडिया हमेशा से इंडिया को गरीब और अनएजुकेटेड देश दिखाती आ रही है, पर अब जब इंडिया इतनी अच्छी तरह से ग्रोथ रेट दिखा रहा है, फिर भी ये अमेरिकन मीडिया शो करके इंडिया के बारे में काफी कुछ नेगेटिव बातें कर रही है, जिसको देखकर इनकी चिढ़ साफ दिख रही है। वहीं एक न्यूज चैनल ने तो एक चाइनीज एक्सपर्ट को ही बुला लिया। उससे जब इंडिया के बारे में ये पूछा गया कि अब इंडिया चाइना की जगह ले रहा है, तो उसने भारत के बारे में ऐसे कुछ कहा ना, जिससे उसकी चिड़न साफ दिख रही थी। लेकिन पहले आप जरा ये अमेरिकन मीडिया का वीडियो देख लीजिए, जो अपने शो में इंडिया की ऐसी जीडीपी ग्रोथ देकर काफी निगेटिव चीजें बता रहे हैं। पहले इनका वीडियो देखिए, फिर हम इसे हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। We're looking at all these numbers and how the Indian economy is doing. Hi, Haslinda. Good morning. Well, yes, India's economic growth accelerated to more than 8% in the final months of the year, and that beat all consensus estimates that were put out by various economists. However, there is one figure that has led to a big cause of concern that we have seen that all analysts now seem to be highlighting. While yes, GDP numbers at 8% are mostly being driven by strong private investments and a pickup in services sector as well, but it is the GVA number that all analysts seem to be looking at for now. Remember, gross value added or GDP that excludes taxes and subsidies has shown that there is a slowdown of sorts, and that is something that various economists seem to be looking at. In fact, this time around we've seen a very wide divergence of close to 190 basis points. That sharp a wedge between GDP and GVA. In the past, we've seen GDP and GVA tracking very close to each other, but this is for the first time that we've seen such a wide wedge between the numbers, where one number is pointing and showing an upward trajectory, where the other one is showing a downward trajectory. And Arushi, we know that agriculture contracted. Is that significant? Is that something India should worry about? Oh, absolutely. Agriculture sector contracted. That has been a big cause of concern. We have seen how the farming community are up in arms against the government as well. And yes, this has become a cause of concern. We have seen a contraction of देसी बंदी बोल रही है उसके एनालिसिस the past एंटी इंडिया, I don't know why. on account of adverse weather conditions. In fact, they also recorded the weakest monsoons that we've seen in 5 years, and that had led to the government extending their curbs on exports for various farm commodities, from sugar to rice to wheat. So yes, that has become a big cause of concern. But having said that, the government expects that from next year there will be some relief for the farm sector, and the numbers will pick up going forward. देखो, अमेरिकन मीडिया काफी शॉक्ड है इंडिया की ऐसी ग्रोथ देखकर, लेकिन इससे ज्यादा चाइनीज मीडिया चिढ़ रही है। उसका भी वीडियो आगे देखेंगे, लेकिन पहले आपको बताती हैं ये अमेरिकन मीडिया चिढ़कर क्या कह रही है। देखो, ये अमेरिकन मीडिया की एंकर पहले तो काफी एक्साइटेड दिख रही थी इंडिया की ग्रोथ को देखकर, बट कुछ देर बाद अपना असली रंग दिखाना चालू कर दिया। देखो, ये लोग अपने शो में ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली इंडिया की जीडीपी ग्रोथ देखकर हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग ये बता रहे हैं कि इंडिया में काफी जगह स्लो डाउन चल रहा है। फिर इन्होंने जानबूझकर ये दिखाने लगे कि भारत में तो किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफी नीचे जा रहा है और उसमें इस साल काफी गिरावट हुई। ये लोग अपने शो में दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ देखकर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वहीं अमेरिका का एक बड़ा न्यूज चैनल ब्लूमबर्ग तो अपने आर्टिकल में ये दिखा रहा है कि इंडिया जीडीपी की वजह से असली बातें छिपा रहा है। ये लोग अपने आर्टिकल में ये दिखा रहे हैं कि इंडिया में ग्रोथ नहीं बल्कि स्लो डाउन चल रहा है। इनकी ऐसी रिपोर्टिंग देखकर ऐसा लगता है कि चाहे इंडिया जितना ग्रोथ कर ले, ये लोग कभी भी पॉजिटिव वे में उसे नहीं दिखा सकते। वहीं यही अमेरिका खाना बंद कर देते हैं, इनको भेजना घाटियां नहीं दिखा सकती है दुनिया तो ना। ग्रोथ और हर तरीके से जो आगे बढ़ रहा है उसे देखकर काफी चिढ़ रहा था। ये चाइनीज एक्सपर्ट शो करते हुए इंडिया
इंडिया और चाइना के बारे में काफी कुछ कह रहा है। ज्यादातर ये इंडिया को नीचे ही दिखाने की कोशिश करता है। पहले आप जरा ये अमेरिकन और चाइनीज एक्सपर्ट का वीडियो देख लीजिए, फिर हम इसे हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। The middle class is going to grow from 400 million to 800 million over the next 10 years. So for equity investors, you need to be cautious in the short term. But for multinationals, everybody keeps telling me, go to Vietnam, go to India. But the reality is the next China is China, because the middle class is going to grow over the next 10 years. The middle class is going to grow over the next 10 years. What about the income growth for that middle class? तो ये भी इंडियन लग रही है। Looking at per capita income standing at about 13,000, 14,000. So China is already rubbing shoulders with high income nations on a very high on a large population base. So I wonder what that middle income or the middle class growth, population growth would mean for their income levels. Their income levels are not going to grow fast currently, maybe 5%, 10% maximum this year. Business enterprises are still suffering from the weak economy. You've seen that there haven't been a lot of widespread layoffs. The Chinese New Year bonuses were not huge, so the income growth is not going to grow this year. What's going to happen more is the government over the last 2 days has been talking about getting education access better for everyday low-income Chinese, getting healthcare access better for everyday low-income Chinese. So what you're going to see is about 400 million low-income Chinese. People are probably making about $6,000 to $8,000 US a year. They're going to swell into the middle class ranks and be making $13,000, $14,000 US over the next 2-3 years. So it's not going to be middle class getting richer. It's about the size of the middle class swelling. So, multinationals, if you're thinking about a 3-5 year growth plan, you got to be investing in India, but you have to be investing in China because there's no other country that has the scale of China. Even if China only grows 5% like the government has announced yesterday is their expectations, that's like adding an entire Thailand and an entire Vietnam economy to China. So the economy is weak, as we've talked about a lot over the past year, but it's not that bad. देखो कैसे ये चाइनीज एक्सपर्ट हर मामले में चाइना की बड़ाई कर रहा है, जबकि आज के समय चाइना बहुत ही खराब फाइनेंशियल हालत से गुजर रहा है। चाइना की ग्रोथ इस साल लगभग 5% के आसपास थी, जबकि कई सालों से चाइना इंडिया से काफी आगे 10% के आसपास ग्रोथ दिखा रहा था। पर अब जहाँ चाइना की ग्रोथ बहुत ही कम हुई है, वहीं चाइना में प्रॉपर्टी क्राइसिस भी चल रहा है, और तो और चाइना में डिफ्लेशन भी चालू हो गया, जो कि हाई इन्फ्लेशन से भी काफी खराब है, क्योंकि जब डिफ्लेशन आता है तो सारी चीजों का रेट बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगता है। ये चीज बिजनेस के लिए बहुत ही खराब है। लेकिन ये चाइनीज एक्सपर्ट इतना ऑप्टिमिस्टिक है कि जहां पूरी दुनिया के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगला चाइना इंडिया है जो चाइना को भी पीछे कर देगा, वहीं ये महाशय कहते हैं कि अगला चाइना इंडिया नहीं बल्कि चाइना खुद है। ये इंडिया की ग्रोथ देखकर चिढ़कर ये बताते हैं कि इंडिया आने वाले समय में इतना तेजी से ग्रो नहीं करेगा जितना तेजी से चाइना करेगा। और ये चाइनीज एक्सपर्ट अमेरिकन न्यूज चैनल में बैठकर दुनिया से ये भी कहता है कि सारे इन्वेस्टर को अगर पैसा कमाना है तो उन्हें चाइना में इन्वेस्ट करना होगा। ये कहते हैं कि अपना पैसा इंडिया में नहीं बल्कि चाइना में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इनका मानना है कि आने वाले 5 सालों में चाइना इतना ज्यादा रिटर्न देगा जो कि इंडिया नहीं दे पाएगा। देखो ये एक्सपर्ट कितने अंधे तरीके से चाइना के गुणगान कर रहा है, पर अब पूरी दुनिया को ये पता है कि इंडिया कैसे अपनी ग्रोथ दिखा रहा है और चाइना कैसे ग्रोथ दिखा रहा है। इंडिया पर अब लोग इसलिए भरोसा करते हैं कि इंडिया जहाँ डेमोक्रेसी है वहीं चाइना ऑटोक्रेसी वाला देश है। ये कभी भी ताइवान के साथ वॉर में जा सकता है, और अगर चाइना ऐसा करता है तो वेस्टर्न देश चाइना पर सैंक्शन लगाएंगे। इससे जो वेस्टर्न इन्वेस्टर है उनके पैसे काफी ज्यादा डूब सकते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी चाइना को छोड़कर इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं और काफी सारे अपने प्लांट भी लगा रही हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। भाई मुझे नहीं पता, पर मुझे तो दोनों के अंदर एक बंदा इंडियन लगा। वो पहले वाले में वो लड़की इंडिया, दोनों में हाँ वो तो नाम से पता चल गया था वो तो है इंडियन थी। यहाँ वाली वीडियो में वो लड़की मुझे इंडियन लग रही थी, यहाँ तो इंडियन होगी, यहाँ पाकिस्तानी होगी। तो दुख तो इस बात का होता है कि अगर कोई इंडियन है वो कैसे एंटी इंडियन टॉक्स के अंदर शामिल हो जाते हैं। जो पॉइंट लेके आई है वो बता रही है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ लॉजिक उसका भी लगा रखा था कि चाइना जो है 5% ग्रो किया है, बट 5% ग्रोथ ऑफ व्हाट, ऑफ 18 ट्रिलियन, और इंडिया ग्रो किया है 8% ऑफ व्हाट, 4 ट्रिलियन। सो 8% ऑफ 4 ट्रिलियन इज लेस दैन 5% ऑफ 18 ट्रिलियन। तो वो उस हिसाब से बात कर रहा था
कि वहाँ का 5% कम है मगर टोटल इज़ हायर देन दिस, मगर उसको ग्रोथ पोटेंशियल नहीं पता कि तुम 5% पे ही ग्रोथ रहोगे, यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा 10। तो इट इज़ नॉट अबाउट टोटल, इट इज़ अबाउट जितना तुमने पैसा लगाया था उसका कितना ग्रोथ हुआ था, हम वो देख रहे हैं जंप। तो वो लोग डेफिनेटली नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि उनको तकलीफ़ है, दैट्स हाउ इट इज़। ये उसकी बात नहीं है कि कौन सा बड़ा ग्रो कर रहा है, परसेंटेज कितना है। अगर मैं जितना लगाता हूँ मेरे को 10% यहाँ मिलता है और 5% वहाँ मिलता है तो मैं वहाँ क्यों लगाऊंगा? आई डोंट केयर कि टोटल तुम्हारा ज़्यादा बनता नहीं बनता। अरे मैं पैसा लगा रहा हूँ तो इन्वेस्टर के लिए तो इंडिया ही बेटर है, क्योंकि इन्वेस्टर को यहाँ पे मिल रहा है 10%, वहाँ इन्वेस्टर को 5% पड़ेगा। टोटल इकॉनमी कितनी ग्रो की, तुम्हारी ज़्यादा क्वांटिटी करी, बट मुझे सब मैं तो देख रहा हूँ अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो वो जो भी है ट्विस्ट कर रहे हैं, थोड़े वो उनकी प्रॉब्लम। मगर एक पॉइंट है कि जो ट्विस्ट कर रहे हैं ये अमेरिकन गवर्नमेंट ट्विस्ट नहीं कर रही, ये अमेरिका ऐसा अमेरिका ट्विस्ट नहीं कर रहा है, ये एक CNBC का एक बंदा ट्विस्ट, दो बंदे जो थे दोनों CNBC वो ट्विस्ट कर रहे हैं। वो उनका अपना एजेंडा है, उनकी प्रॉब्लम है, इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, उसका हेडेक है। मगर इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि अमेरिकन गवर्नमेंट को ट्विस्ट नहीं कर रही है। तो उसमें बहुत अंतर है। ये US में कैपिटलिज्म है, उसमें कोई सोशलिज्म नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। हो सकता है वो चैनल में चाइनास का फंड आता होगा इसलिए उसने उस चैनल में नहीं, उस चैनल का जो ये प्रोग्राम है स्पेसिफिक, ये चैनल में कितने सारे प्रोग्राम, इस चैनल में जो प्रोग्राम है वो फंडेड बाय चाइना होगा। दैट्स हाउ इट इज। तभी वो ये चला रहे हैं, वो अपना दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चाइना जो है वो ज्यादा मतलब उस पे। आप ये भी नहीं कह सकते ब्लूमबर्ग की प्रॉब्लम है, ब्लूमबर्ग बोलेगा हमारे तो बड़े सारे चैनल हैं, कोई कुछ बोल के चला गया, उसकी क्या फंडिंग है, हु नोस क्या हो रहा है। तो वही है। पर एनीवे इससे ये जरूर दिख रहा है चाइना घबरा रहा है, उसको वो घबराया हुआ है कि इंडिया कंपटीशन में कूद चुका है और उससे हमें नुकसान होगा, वो उसको नजर आ रहा है फ्यूचर में। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।